Good afternoon, everyone. Today we will be discussing about the serious or severe mental disorders. These are approximately around 0.8% of the population has severe mental disorders. 0.8% means if you take 140 crore, in that if you take 0.8 means approximately 1 crore population has severe mental disorder. So in that, if you consider at least 20 to 30% are treatment resistant. We have around 20 to 30 lakh people who are homeless, who are not what we call it. Even if you give treatment, they have treatment resistance. So this is a huge number considering our population. So identifying them, treating them is very essential. At the same time, there is a national mental health survey which was done by NIMHANS in 2015-16, clearly said that the treatment gap is the people who have been identified having an illness but not on treatment. It was found to be around 70%. That means out of 100 severe mental disorders, patients who are in the community, 70% are not on treatment. Reason being, one is they don't have insight that they have illness. Second, access to treatment. Third one is continuity of supply of medication. So these are the various essential aspects which play an important role. So this class will be basically focusing on how to identify severe mental disorder, how to treat the severe mental disorder, and how to continue the medication. So Dr. Pratik will be presenting it and I'll be chairing the session. And if you have any questions, please don't hesitate to ask question. Over to you, Dr. Pratik. Good afternoon, all. Are the slides visible? Hello? Yeah, go ahead. I think you're clear. Yes, visible. Okay. So good afternoon. I am Dr. Pratik and I'm working as a senior resident at NIMHANS. And today's chairperson you have already met, and that is Dr. B.M. Suresh, who is a senior professor here and head of telepsychiatry unit at NIMHANS. So today we'll be talking about the evaluation and assessment of severe mental illnesses. And as we go along with the presentation, the outline basically entails us understanding what exactly is a severe mental illness. And under the ambit of severe mental illnesses, we'll be discussing about schizophrenia, bipolar disorder, what are the acute management options that we have to deal with these severe mental illnesses, and what is the course and long-term treatment of these severe mental illnesses, and along with pharmacological interventions, what are the psychosocial interventions that we have available with us, and what are the common comorbidities that are usually found in patients or individuals who have severe mental illnesses. So going to the first topic of the presentation, what is a severe mental illness? So the importance of severe mental illnesses has already been highlighted by Dr. B.M. Suresh, wherein the prevalence has been found to be around 0.8% as per the recent survey done, National Mental Health Survey done by the team at NIMHANS also was involved with that. So what is important to understand is that the word severe in mental illness, because severe means that anyone can diagnose, and it is noticeable even to the untrained eye. So if a patient comes to you, he would come with the members who would already say that he has a mental illness. So in a way, your job is easier because even the lay person can tell you that this individual has some mental illness which is of a severe degree. And along with that, it is also called severe because it causes gross disturbances in the lives of the individual, their families and communities. It can be at a personal level, and it can be at a social level, or it can be at an occupational level. There will be some severe dysfunction or major impairment happening into the day-to-day activities of the individual who has severe mental illnesses. And as we discussed, broadly, there are three categories of severe mental illnesses. First being schizophrenia, the second being mania, and third being depression, usually which is of a severe modality. And if
mania and depression are together present in a patient, we usually call it bipolar affective disorder, about which we will be discussing in the subsequent slides. So coming to the second question, we have understood what a severe mental illness means. Now we want to understand what is exactly schizophrenia. Many of us would have heard this term. So I want you to focus on the picture on the right side. So this is a common whatever a chocolate, or in north we call it a goli, churan ki goli. That is actually very famously found in North India. And if you look here, it all depends on your perspective. So अगर आप एक साइड से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि it is the guru, and if you look from the opposite side it is the chela. So a lot of things depend on your perspective. तो जो आपके लिए नॉर्मल है हो सकता है किसी और के लिए अब नॉर्मल हो, और जो दूसरे के लिए नॉर्मल है वो आपके लिए अब नॉर्मल हो. तो इसमें पेशेंट का नजरिया समझना जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है पहली नजर में आपको उनका नजरिया समझ में नहीं आए. तो इसको अगर हम डिवाइड करें सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को, सो वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. सो द फर्स्ट वुड बी पॉजिटिव सिम्टम्स, सेकंड वुड बी नेगेटिव सिम्टम्स, एंड थर्ड वुड बी कॉग्निटिव सिम्टम्स. सो व्हाई डू वी कॉल इट पॉजिटिव सिम्टम्स? बिकॉज दीज आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन अ नॉर्मल और सो कॉल्ड नॉर्मल इंडिविजुअल. मतलब आम इंसान जिसको कोई सीवियर मेंटल इलनेस नहीं है उसमें यूजुअली ये प्रेजेंट नहीं होंगे. सो दीज आर इन एडिशन टू समथिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल पीपल. नेगेटिव इसलिए क्योंकि यूजुअली जो नॉर्मल इंसान है उसमें ये चीजें होती हैं, बट जिनको सीवियर मेंटल इलनेस है उसमें ये चीजें नहीं होंगी, तो इसलिए वो डेफिसिट है या नेगेटिव कंपोनेंट आ जाता है. एंड थर्ड कंपोनेंट इज कॉग्निटिव, विच इज मोर अबाउट द थिंकिंग कैपेसिटी और द कॉग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल. सो वी विल ग्रेजुअली बी सीइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दीज डोमेन्स. So if we start with positive symptoms, so briefly if I give you example, we must have seen patients or individuals or people who have severe mental illnesses, they complain or family complains that he has been muttering to self, या अपने आप में बात करता है, बेतुकी बातें करता है, कुछ भी बकवास बोलता है. So that is usually talking to self. That can be a symptom that the patient presents with. So family will say that it seems that he is hearing voices, और ऐसा लगता है कि वो किसी से बातचीत करने का कोशिश कर रहा है, हालांकि आसपास कोई मौजूद नहीं है, एंड वी कैन नॉट हियर द वॉइसेस दैट ही इज लिसनिंग टू. एंड दिस कुड लीड टू हिम सीइंग थिंग्स दैट नॉट रियली आर देयर. सो वन डोमेन हो सकता है कि उनको कुछ सुनाई दे रहा है जो असली में प्रेजेंट नहीं है, और एक तरीका हो सकता है कि उनको दिखाई दे रही हैं चीजें जो एक्चुअली नहीं है. सो सिर्फ सुनने और देखने के अलावा ये दूसरी सेंसेस में भी मौजूद हो सकता है, जैसे टेस्ट में या फिर हमारे महसूस करने की शक्ति में. सो जो स्पेशल सेंसेस होती है उनमें से किसी भी मोडालिटी में ये परसेप्शन हम लोगों को महसूस हो सकता है. सो इसको हम ब्रॉडली कहते हैं हैलुसिनेशंस. मतलब कि हालांकि कोई स्टिमुलस या कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, बट तब भी वो इंसान उन चीजों को महसूस या सुन या देख पा रहा है, और उसका रिएक्शन हो सकता है टॉकिंग टू सेल्फ या खुद में बात करना. दूसरा पॉजिटिव सिम्टम अगर हम देखें तो उसको कहते हैं डिल्यूजन्स. सो कभी कभी पेशेंट्स या उनके फैमिली मेंबर आएंगे कि वो बिना किसी खतरे के, उनको ऐसा लगता है कि दे आर रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय समवन, या उनको लगता है कि उनको बहुत डर होता है या फियर होता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है. तो पेशेंट को ऐसे जिसको हम बोलते हैं फॉल्स बिलीव्स होंगे, जिनका कोई एक्चुअली प्रूफ नहीं है कि एक्चुअली में ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, बट उन लोगों को बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है. और हालांकि आप उनको कुछ उदाहरण देने का कोशिश करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डू दे फील लाइक दिस, दे विल स्टिल गिव यू अ वेरी पर्सनल और complex reason why they feel that, which may not be understandable by you or the family as well. So this is broadly called as delusions, and delusions can be of various types, जिसमें से एक हो सकता है fear से related, एक हो सकता है suspiciousness, और इस तरीके के और भी examples होते हैं delusions में. तो जैसे हमने बात करा था, दूसरा एस्पेक्ट होता है नेगेटिव सिम्टम्स. उसमें अगर हम देखें तो कभी कभी हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स आएंगे कि वो
बिल्कुल ही बात नहीं करता है और अपने में रहना पसंद करता है। हमने देखा है कि ऐसा लगता है कि वो उदास है। कभी कभी लगता है कि वो कोई भी अगर फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फिर अपने आप में ही रहते हैं। और उनको अगर घर का कुछ काम दें या फिर वो जो पहले कार्य कर पाते थे पूरी तरीके से, अभी वो नहीं कर पाते हैं, उनमें एनर्जी नहीं है कुछ करने की, ऐसा वो बोलते हैं। और उसके साथ साथ हो सकता है कि नींद में भी डिस्टर्बेंसेस हैं। तो ये सब जो हैं चीज़ें, ये ब्रॉडली नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान यूजुअली जैसे बातचीत नॉर्मली करेगा, लोग होंगे तो उनसे मिलेगा, अपना काम होगा कोई ऑफिस का या घर का तो ठीक से कर पाएगा, बट ये लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम इन्हें नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स की। तो हमने देखा होगा, मूवीज में दिखाया जाता है, या फिर अगर आप किसी गांव में जाते हैं या यूजुअली सिटीज में भी सड़क पे आपको दिखता है कि कोई बहुत ही गंदे मैले कपड़ों में है और वो बहुत दिनों से नहाए नहीं है, और वो कचरे के सामान में मतलब उनके आसपास कचरा काफी ज्यादा है और वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनका जजमेंट ठीक नहीं है, पुअर जजमेंट है। और उसी के साथ हो सकता है कि वो ध्यान भी नहीं दे पाते हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे इस फोटो में दिख रहा है कि वो सड़क पार करते वक्त कुछ भी आसपास नहीं देख रहे हैं, तो क्योंकि उनका अटेंशन जो है वो ठीक से नहीं दे पा रहे जिन चीजों पे उन्हें देना चाहिए, तो उनका ध्यान किसी और चीज में लगा रहता है। तो उनका थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा अलग होता है। तो इनको हम ब्रॉडली कहते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से, तो आपको देखना होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं 1 महीने के लगभग होने चाहिए एटलीस्ट। और उसी में जैसे मैंने बताया आपको, डिल्यूजन्स या हैलुसिनेशंस हो सकते हैं जो पॉजिटिव सिम्टम्स के अंडर आते हैं, और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर नेगेटिव सिम्टम्स जो नेगेटिव सिम्टम्स के अंडर आते हैं, और चेंज इन स्पीच जो कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंडर भी आ सकता है। ये फोटो मैंने इसलिए डाली क्योंकि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी, जजमेंटल है क्या, जिसमें कंगना रनौत का जो कैरेक्टर था उनको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम थी, और वो कुछ अजीब तरीके के प्राणियों से बात कर पाती थी, उन्हें वो दिखते थे, उनसे वो बातें करती थी, उनकी फीलिंग्स वो महसूस कर पाती थी। हालांकि दूसरे लोगों को जो उस मूवी में थे, कैरेक्टर्स थे या किरदार थे, उन लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखती थी। और फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ था, और जब वो दवाइयाँ नहीं लेती थी उनके सिम्टम्स बढ़ जाते थे। तो इसलिए फोटो मैंने डाली है यहाँ पे। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन था हमारा इस प्रेजेंटेशन का, जिसको हम आंसर करने का कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब क्या है, तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है मेनिया। तो मेनिया में जैसे आप देखेंगे कि इन फोटोज में दिखाया जा रहा है कि इंसान को हो सकता है कि बहुत ही, जैसे बोलते हैं कि उत्तेजित तरीके का मूड है, मतलब कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या फिर ऐसे लगता है कि जरूरत से ज्यादा खुश हैं। खुश हम सब होते हैं, बट इन लोगों की खुशी का कोई एग्जैक्ट कारण शायद ना मिल पाए हम लोगों को, और हम समझते हैं कि इनकी जो खुशी है वो थोड़ी अब है। उसी तरीके से हो सकता है कि उनको एक जगह पे बैठने में मुश्किल हो, वो बेचैन रहते हो, बहुत सारी चीजें करना चाहते हो, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकलता है उन चीजों का, मतलब वो चीजें शुरू करते हैं बट वो खत्म नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से जो इंसान जो थोड़ा कम बोलता था या नॉर्मल बोलता था, उनके में पाए जाए कि वो जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं, उनसे बात करना मुश्किल है क्योंकि वो आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, और बहुत उत्तेजित हो जाते हैं अगर आप उन्हें रोकने का कोशिश करें। उसी के तरह जैसे मैंने बोला, बोलना ज्यादा कर रहे हैं। और एक और चीज हो सकता है जिसे कहते हैं गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो वो कोशिश करते हैं कोई चीज करने का जिसका कोई अच्छा नतीजा निकले, बट वो उस टास्क को कभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है वो मल्टीटास्किंग जैसे हम बोलते हैं करते हो, बट कोई भी चीज वो ध्यान पूर्वक या पूरी तरीके से ठीक तरीके से करना, या जिस तरीके से एक्चुअली से करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन या उनकी इच्छा ज्यादा होती है मेनिया में। उसी तरीके से जैसे बाइपोलर बताया गया, तो एक पोल हमने डिस्कस करा मेनिया का, उसी तरीके से दूसरा पोल होता है डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन कॉमनली आप लोग ने सुना है, लोग कॉमनली बोलते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन साइकाट्री में डिप्रेशन का एक अलग मतलब होता है। उदासी सबको होती है, लेकिन जब भी उदासी हानिकारक होने लगे, या फिर आपके रोज
काम करने के चीज़ों में इंटरफेयर करने लगे तो हम उसे सिंड्रोमल डिप्रेशन कहते हैं। तो पहला सिम्टम होता है डिप्रेस्ड मूड, मतलब कि बहुत ज़्यादा उदास होना, और इस उदासी का हो सकता है कोई कारण हो या नहीं भी हो, लेकिन जो ये उदासी की इंटेंसिटी है या सिवियरिटी है या ड्यूरेशन है वो नॉर्मल उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है। उसी के साथ हो सकता है कि उनको किसी भी कार्य करने में इच्छा बिल्कुल ना हो और वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जैसे अगर आप उनसे बात करें तो वो काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव बातों पर उनका ज़्यादा ध्यान जाता है, जैसे कि उनको लग सकता है कि भविष्य में कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं हमेशा मतलब इस तकलीफ की वजह से सफ़र करूंगा, मुझे कोई समझने वाला हेल्प करने वाला नहीं है, शायद मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो अपने आप को ब्लेम करना, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना और अपने आप को अकेला महसूस करना, ऐसे ख्याल भी उनके मन में आ सकते हैं। सिमिलरली हो सकता है कि उन लोगों का थिंकिंग और उन लोगों का काम करने का पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाए, और जो चीज़ें जो उनके लिए पहले नॉर्मल रूटीन थी, जैसे कोई हाउसवाइफ हो उनके लिए घर का काम करना रूटीन वर्क है, बट डिप्रेशन में हो सकता है वही रूटीन वर्क उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए कि उनको लगे कि वो नहीं कर पा रही हैं जो उनके लिए पहले रूटीन था। उसके अलावा हो सकता है कि उनको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हों, लेकिन उसके साथ हो सकता है उनको कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हों, क्योंकि हम सबको पता है कि माइंड और बॉडी कनेक्टेड होते हैं। तो अगर माइंड ठीक नहीं है तो बॉडी में भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सर का भारीपन, बदन में दर्द होना, जल्दी थकान आ जाना, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है बायोलॉजिकल सिम्टम्स। तो जिसमें हम देखेंगे कि उनको नींद टाइम पे नहीं आती है और वो रात रात भर जगे रहते हैं, अगली सुबह उठते हैं तो उनको फ्रेश फील नहीं होता है, भूख कम लगना, भूख कम लगने की वजह से वजन कम हो जाना, और उसके अलावा अगर सेक्सुअल जो रिलेशंस हैं उनके उसमें इच्छा ना होना, तो ये सब बायोलॉजिकल सिम्टम्स में भी उन लोगों की अफेक्ट आ सकता है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिप्रेशन की, कि उन लोगों को लग सकता है कि इस तरीके से जीने का कोई फ़ायदा नहीं है और मैं मरना पसंद करूँगा, तो उनके दिमाग में ऐसे ख़्याल आ सकते हैं सुसाइड के या अपनी जान लेने के, हो सकता है वो अटेम्प्ट भी करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों की समझने के लिए कि डिप्रेशन में सुसाइड का भी रिस्क बढ़ जाता है। और कभी-कभी इन सिम्पटम्स के साथ, जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया में सिम्पटम्स डिस्कस करे, डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन, वो डिप्रेशन और मेनिया के साथ भी पाए जा सकते हैं। लेकिन उनका थोड़ा जो प्रेज़ेंटेशन होगा हो सकता है अलग हो, वो कभी-कभी उनके मूड के प्रति ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे अगर किसी को डिप्रेशन है तो उनको ख़्याल होंगे कि कोई किसी ने मेरे खाने में सच में मतलब मैं कभी ठीक नहीं होऊँगा और मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और हो सकता है कि मेरी बॉडी में कुछ बहुत बड़ा डिसफंक्शन है या बहुत बड़ी तकलीफ़ है और किसी ने वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसे किया है। तो उन लोगों को यूजुअली हम बोलते हैं मूड कॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन्स होते हैं। जिस तरीके का उनका मूड है, उसी तरीके की थीम होती है उनके डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस की। तो अगर हम सब सिंथेसाइज करने का कोशिश करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 पोल्स हैं, एक है मेनिया का और एक है डिप्रेशन का। मेनिया का जो पोल है वो एटलीस्ट 1 वीक तक होना चाहिए और डिप्रेशन का एटलीस्ट 2 वीक्स तक कंटिन्यूअसली, तो हम उसको बाइपोलर कह सकते हैं। और मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी फंक्शनिंग में या दिनचर्या में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस चीज़ का इफेक्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो मैंने ये एक फेमस बॉलीवुड म्यूजिशियन हैं यो-यो हनी सिंह, जिन्होंने ओपनली अपने बाइपोलर डिसऑर्डर की बारे में डिस्कस किया है, कैसे जब उनको डिप्रेशन होता था तो वो काम छोड़ देते थे और काफ़ी सालों से वो गायब थे इंडस्ट्री से डिप्रेशन की वजह से। तो अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो आपको इस चीज़ को याद रखने में शायद मदद करे कि बाइपोलर पेशेंट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो अब हमने बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ब्रीफली बात करा है। अब हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर मेंटल इलनेस, कि आपको जैसी पेशेंट प्रेजेंट हो, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो क्या चीज़ है? तो सबसे पहली जो बात आपको समझने की ज़रूरत है कि किसी भी साइकियाट्रिक मेडिकेशन की इफेक्ट आने में एटलीस्ट 2 to 3 weeks लगता है. So there will be some period wherein the medicine may not be actually able to help the patient in controlling the symptoms. And the full action of जो psychiatric medications है वो
4 या 6 हफ्ते के बाद ही पूरी तरह आता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन 94 ऑफ MHCA, क्योंकि ये बोलता है कि कोई भी मानसिक रोग या मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ पर्सन विद इलनेस ईदर एट अ मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट और इन द कम्युनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बताता है कि मानसिक रोग का ट्रीटमेंट एक मेडिकल ऑफिसर या MBBS ग्रेजुएट भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे मानसिक रोगों का इलाज एक स्पेशलिस्ट ही करे। तो लेकिन उसका कारण, उसके जो कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि डेथ या इरिवर्सिबल हार्म टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन, आपको लगता है ऐसा हो सकता है, या पर्सन इज इन्फ्लिक्टिंग सीरियस हार्म टू हिमसेल्फ, या द पर्सन इज कॉजिंग सीरियस डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो या तो वो खुद को हानि पहुंचा सकता है, या दूसरों को, या फिर अपने आसपास के वातावरण को। अगर ये 3 क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करता है तो आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और यूजुअली जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है जो अगस्त में पास हुई है 19 अगस्त में, उसमें दिया गया है कि रिस्पेरिडोन टैबलेट जो है 2 to 4 mg या टैबलेट हैलोपेरिडोल, जो दोनों, जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ये उनकी डोजेज हैं जिसमें आप उनको अक्यूट मैनेजमेंट के लिए दे सकते हैं। उसी के साथ 2 टैबलेट्स जिनको हम लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम कहते हैं, उनको बेंजोडाइजेपिन क्लास के अंडर वो आते हैं, उनसे भी हम मदद ले सकते हैं अक्यूट मैनेजमेंट की। और ये उनकी डोजेजेस हैं 0.5 to 2 और डायज़ेपाम की 5 to 30। तो हमने देखा कि क्यों ज़रूरत है अक्यूट मैनेजमेंट की, और हमने ये भी देखा कि मेडिकल ऑफिसर्स कर सकते हैं अक्यूट मैनेजमेंट मानसिक रोगों का, कर सकते हैं तो किन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम समझना चाहेंगे कि अगर उन दवाइयों से भी फायदा नहीं होता है तो आगे का क्या प्लान होता है। तो वो कवर होता है सेक्शन 89 ऑफ MHCA के अंडर। MHCA मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो पास किया गया था। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 89 बोलता है कि अगर किसी भी पेशेंट को इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है, जैसे रिसेंटली थ्रेटेंड और अटेम्प्टेड और इज थ्रेटनिंग टू कॉज बॉडीली हार्म टू हिमसेल्फ, या कॉजिंग अनदर पर्सन टू फियर बॉडीली हार्म, या फिर रिसेंटली शोन इनएबिलिटी टू केयर फॉर हिमसेल्फ। सो इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया वो क्वालिफाई करते हैं, तो हालांकि उनको समझ ना हो कि उनकी बीमारी क्या है, हम उनको सपोर्टेड एडमिशन के अंडर किसी भी मेंटल किसी भी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। अनम्यूटेड है, हाँ, थैंक यू। Thank you. सो इन तीनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया क्वालिफाई होता है तो आप लोग अपना माइक म्यूट रखें। Okay, now you unmute. Now you speak. तो अगर आप इस चीज़ के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने एक YouTube लिंक प्रोवाइड किया है जो हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर BM सुरेश के YouTube चैनल पे अवेलेबल है, जो डिटेल में समझाता है कि सेक्शन 89 ऑफ MHCA क्या है और कब आप ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए रेफर कर सकते हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे बड़े अस्पताल जैसे PGI चंडीगढ़, CMC लुधियाना, या सिविल अस्पताल अम्बाला और एम्स भटिंडा जैसे बड़े अस्पतालों में आप रेफर कर सकते हैं उन पेशेंट्स को जो दवाई से या तो उन्हें फायदा नहीं हो रहा है, या फिर आपको इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया लगता है कि वो मीट करते हैं, तो आगे उनको आप रेफर कर सकते हैं किसी भी बड़े मानसिक अस्पताल में। फिर अगर हम बात करें तो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी पेशेंट में ऑर्गेनिसिटी रूल आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिसिटी मतलब कि उनका बायोलॉजिकल जो बॉडी है या ब्रेन स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो रूल आउट करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकता है। लेकिन एक तरीके से कहा जाता है यूजुअली अ वॉकिंग एंड टॉकिंग पेशेंट कैन बी सीन बाय मेडिकल ऑफिसर। सो इफ द पेशेंट इज एबल टू वॉक प्रॉपर्ली and is able to talk properly, then usually lesser chances of organicity being there. So ये अगर आप ध्यान रखें कि अगर बातचीत ठीक है तो इट्स अ गुड साइन कि ऑर्गेनिसिटी नहीं होगी।
अगर कोई पेशेंट आता है जो अर्ली एज में आता है, जैसे एडोलेसेंट्स में या फिर अर्ली 20s में, तो आपको देखना चाहिए कि अगर उसको बाउल और ब्लैडर या जिसको कहते हैं टॉयलेट कंट्रोल है कि नहीं। अगर वो नहीं है और वो अपने कपड़ों में टॉयलेट पास कर देते हैं, तो वो साइन है कि आपको उन्हें शायद डिटेल में इवैल्यूएट करने की ज़रूरत हो आगे। और हर पेशेंट जो लेट ऑनसेट आता है 45 to 48 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर और फर्स्ट टाइम साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है, वो भी एक अंदेशा हो सकता है कि उनको कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो ब्रेन में। तो आपको अपनी तरफ से जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन, जिसमें आप देखना चाहेंगे कि उनको कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स तो नहीं है, कोई भी साइड किसी दूसरी साइड ऑफ बॉडी से कैसे डिफरेंट है अगर है, तो अगर आप वो करके एक नोट करें और उनको फिर रेफर कर सकते हैं हायर सेंटर जैसे डीएमएचपी या किसी भी बड़े अस्पताल जो हम पहले बात करें हैं, क्योंकि हो सकता है उनको ब्रेन इमेजिंग जैसे सीटी ब्रेन या एक स्पेशलिस्ट की जरूरत हो मैनेजमेंट के लिए। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ठीक है, हमें पता है मानसिक रोग क्या है, हमें पता है उनका अक्यूट मैनेजमेंट क्या है, हमें पता है उन्हें कब हमें आगे रेफर करना चाहिए, बट ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द कोर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर मेंटल इलनेसेस। तो ये जो आपकी बुकलेट आपको प्रोवाइड करी गई है उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। तो अगर हम सीवियर मेंटल इलनेसेस के रिलेशन में बात करें, सो ये 17 to 20 क्वेश्चन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू आस्क, क्या पिछले कुछ हफ्तों में आपको लगता है कि पेशेंट अपने आप में बात करता है या खुद में हंसता रहता है, तो चांस है कि हो सकता है उनको हेलुसिनेशंस का प्रॉब्लम हो। अगर पिछले हफ्तों में उनका सेल्फ केयर या हाइजीन या फिर वो बार बार बाहर बिना किसी पर्पस के घूमते रहते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाउट होता है, साजिश का डाउट होता है, या फिर वो अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुझ में भगवान है या भगवान ने मुझे स्पेशल शक्ति दी है, तो उसको हम डिल्यूजन की तरफ अंदेशा होगा वो। और उसी तरीके से उनकी फंक्शनिंग, मतलब उनकी नींद कैसी है, क्या वो ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा या उनमें बहुत ज़्यादा पावर या एनर्जी आ गई है। तो ये सब क्वेश्चन का अगर आंसर यस है या इनमें से किसी एक का भी आंसर यस है, तो फिर आपको अंदेशा होगा कि उनको एक सीवियर मेंटल इलनेस या साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये चेकलिस्ट अगर आप हर पेशेंट जिसमें आप सस्पेक्ट करें ये यूज करें तो आपको फायदा होगा। तो अगर हम बात करें सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स डायग्नोसिस में, साइकोटिक डिसऑर्डर आ जाता है। और इधर अगर आप देखेंगे तो 3 ऑप्शंस दिए हैं, अक्यूट, एपिसोडिक और क्रॉनिक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझना जरूरी है कि उनका लॉन्ग टर्म कोर्स क्या है। हमने डायग्नोस कर दिया कि उन्हें सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, बट अगर हम बता सकते हैं कि आगे क्या होगा या फिर जो अभी तक हुआ है वो कैसा कोर्स रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट में आगे मदद होती है। क्योंकि अगर आप देखें अक्यूट मतलब कि कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक उनका जो बीमारी है उतनी देर का रहा है, तो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक अगर हम बात करें। क्रॉनिक मतलब अगर कुछ महीनों से कुछ साल तक अगर प्रॉब्लम रही है तो उसे क्रॉनिक कहते हैं। एपिसोडिक अगर हो जाता है कि उन्हें कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने तकलीफ रहती है, बट बीच में वो कुछ टाइम ठीक हो जाते हैं और कुछ टाइम ठीक रहने के बाद उन्हें फिर से वो तकलीफ आ जाती है, तो एपिसोड्स की तरह आती है। तो एपिसोडिक इलनेस, तो अगर आप देखें अक्यूट या क्रॉनिक इलनेस का जो ट्रीटमेंट है वो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट अगर एपिसोडिक प्रॉब्लम हो तो हो सकता है उन्हें हायर सेंटर का रेफरल की ज़रूरत हो। उसी तरीके से जो ड्यूरेशन है वो, अगर आप देखें अक्यूट बीमारी अगर है कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक, तो आप उनका ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने तक चलाना ज़रूरी है। मतलब दवाइयाँ उतने दिनों की आपको उनको देनी पड़ेगी और उन्हें उतने दिन खानी पड़ेगी। क्रॉनिक का है मतलब कि कुछ ज़्यादा महीनों से है या कुछ सालों के ऊपर है, तो उनको भी दवाइयाँ कुछ साल तक खानी पड़ेंगी। तो ये उनके लॉन्ग टर्म कोर्स कैसा रहा है, कभी कभी हम पहले इवैल्यूएशन में नहीं बता सकते कि उनका कोर्स क्या रहेगा, बट ग्रेजुअली फॉलोअप्स में या ऑब्जर्वेशन में आप ये कोर्स उनको बता सकते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम बात करते हैं कि दवाइयाँ हम देंगे, बट हम एग्जैक्टली उन्हें क्या दवाइयाँ देंगे उनके मैनेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में। तो इधर आप देखें तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स लिखा है और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देता है। यूजुअल प्रैक्टिस में हम लोग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ज़्यादा देते हैं, तो उसमें से सबसे कॉमनली जो हम देते हैं वो है रिस्पेरिडोन और ओलांज़ापिन। तो आप जिस डोज पे उसे देंगे वो 2 mg पे स्टार्ट करेंगे
और मैक्सिमम डोजेज जो आप दे सकते हैं 4 mg तक दे सकते हैं। उसी तरीके से ओलांजापिन 5 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 10 mg तक दे सकते हैं। ज़रूरी हो जाता है मॉनिटर करना कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो रिस्पेरेडॉन दवाई से इम्पॉर्टेंट जो है बीपी मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है और सीरियल वेट मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है। उसी के साथ प्रोलैक्टिन जो बॉडी में नॉर्मली पाया जाता है पिट्यूटरी हार्मोन, उसका रिस्क बढ़ने का ज़्यादा होता है रिस्पेरेडॉन से। तो आपको मॉनिटर करना होगा मेल पेशेंट्स में कि उनको कोई भी ऐसा सिम्टम है जैसे कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना या फिर लिबिडो कम होना या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो आपको होशियार रहना होगा और आपको देखना होगा कि प्रोलैक्टिन लेवल्स कराने की ज़रूरत है। उसी तरीके से ओलांजापिन में नींद ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा नींद करना या फिर वज़न ज़्यादा बढ़ जाना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू बाकी चीज़ें। और ईपीएस मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो ईपीएस के बारे में भी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो एक दवाई है क्लोज़ापिन जिस पे स्टार लगाया गया है, क्योंकि यूजुअली ये दवाई उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको इन दवाइयों से नॉर्मली जो हम दे रहे हैं रिस्पेरेडॉन ओलांजापिन वगैरह से आराम नहीं हो रहा है। अगर 1 या 2 ट्रायल्स फेल हो रहे हैं या फिर उनको फायदा नहीं हो रहा है तो हम क्लोज़ापिन शुरू करते हैं। और यूजुअली ये जो दवाई है ये साइकियाट्रिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही आपको शुरू करनी चाहिए। आप खुद करेंगे तो वो हो सकता है वो सेफ ना हो, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें रिमार्क्स में तो फिट्स का आना या मिर्गी का आना एक रिस्क हो सकता है अगर डोज ज़्यादा हो। और ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस या कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस मतलब खून में एक तरीके के वाइट ब्लड सेल की कमी होना जो फेटल भी हो सकता है। उसी तरीके से कार्डियोमायोपैथी भी फेटल हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप ये दवाई शुरू करें तो हमेशा एक साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन आपको लेना ज़रूरी हो जाता है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में इंपॉर्टेंट हैलोपेरिडोल हो जाता है। कभी-कभी कुछ पेशेंट्स को, जैसे आप रिमार्क्स में देखेंगे कि ये कार्डियो सेफ है, मतलब अगर किसी पेशेंट को कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप हैलोपेरिडोल लो डोज पे शुरू कर सकते हैं। तो कभी-कभी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। हालांकि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स प्रैक्टिस में ज़्यादा प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। सो मैं सबकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये 4 दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं और मैं इनको हाईलाइट करना चाहता था। उसी के साथ अगर आप ये देखें तो अभी हम पिछली स्लाइड में हमने ओरल दवाइयों के बारे में बात करी थी, अभी हम डेपो प्रेपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो डेपो प्रेपरेशंस मतलब इंजेक्टेबल्स। और डेपो हम उन पेशेंट्स को देते हैं या तो फिर उन लोगों को ओरल टैबलेट्स वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि उनकी बीमारी की वजह से उनमें जिसको हम बोलते हैं इंसाइट नहीं है या फिर उनको जानकारी नहीं है कि उनकी मानसिक तबीयत खराब है, तो और वो दवाई लेने से मना करें। तो उन पेशेंट्स में या फिर उन पेशेंट को जिनको ओरल दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको हम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इंजेक्शन के ऑप्शंस हैं फ्लूफेनाजीन, फ्लूपेंथिक्सोल। और अगर आप ध्यान दें तो ज़्यादातर जो ये इंजेक्शन हैं वो 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर 1 डोज देना होता है। और अगर आप रफली याद करना चाहते हैं तो 1 महीने में एटलीस्ट 1 इंजेक्शन उनको लगना चाहिए। और इन सब इंजेक्शंस को इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाता है। तो अगर आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपको बोलना होगा कि ये उनको किसी नर्स से लेना है या फिर किसी मेडिकल पर्सन से ही लेना है, घर पे वो खुद नहीं दे सकते, क्योंकि आईएम इंजेक्शन देना घर में मुश्किल हो सकता है। तो ये उनकी डोजेजेस भी मेंशन्ड हैं। और यूजुअली ये भी आप लोग उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनको आप लगता है कि वो ओरल दवाइयाँ नहीं लेंगे या फिर उनको दवाइयों से फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये अगर आपके पास पेशेंट आता है सीवियर मेंटल इलनेस का, ये एक सैंपल प्रिस्क्रिप्शन है आपको उन्हें कैसे देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था यूजुअली हम रिस्पेरेडॉन और ओलांजापिन देते हैं। तो रिस्पेरेडॉन 2 mg आप 4 दिन के लिए देते हैं और फिर आप 2 दिन तक रात को 4 mg तक दे सकते हैं और उन्हें कंटिन्यू करने को बोलते हैं। उसी तरीके से ओलांजापिन 5 mg पे स्टार्ट करें आपने और 10 mg तक आप उन्हें कंटिन्यू करने को बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो हमने टीएचपी या ट्राइहेक्साफेनाडिल भी ऐड करा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था रिस्पेरेडॉन में साइड इफेक्ट्स जो हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स उनका होना रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है ओलांजापिन के मुकाबले। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम टीएचपी उनको देते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स एग्जैक्टली हैं क्या? तो अगर हम देखें तो पहला है डिस्टोनिया, दूसरा एकथीसिया और तीसरा है ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म।
उसी तरीके से अगर हम इन तीनों को इस ऑर्डर में फॉलो करें तो उनका ऑनसेट जो भी है वो भी उसी तरीके से उसी ऑर्डर में होता है। मतलब कुछ ही घंटों के आपने दिया पेशेंट को टैबलेट या इंजेक्शन, कुछ ही घंटों के अंदर अगर उनको ट्विस्टिंग ऑफ आर्म्स, लेग्स, आई बॉल्स हो रहा है तो वो डिस्टोनिया कहा जाता है। और इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन प्रोमेथाजीन, जो हम 25 to 50 mg दे सकते हैं, और ये बाकी ऑप्शन है। यूजुअली हम प्रोमेथाजीन पेशेंट्स को देते हैं। उसी तरीके से अगर उनको कुछ दिनों के अंदर, मतलब दवाई देने के कुछ दिनों के अंदर बहुत बेचैनी हो रही है और जिसे बोलते हैं एक रेस्टलेसनेस हो रही है, तो उसे हम akathisia बोलते हैं, जिसके लिए आपको दवाई की डोजेज हो सकता है कम करनी हो, या फिर प्रोपेनोलॉल जैसा बीटा ब्लॉकर अप टू 40 mg पर डे आपको ऐड करना हो। उसी के साथ अगर कुछ हफ्तों के बाद आपने दवाई दी और उनके हाथ या पैरों में बहुत ज्यादा ट्रेमुलसनेस हो रही है और वो बहुत स्लो हो गए हैं, तो उन्हें ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म हो सकता है, जिसके लिए आपको उन्हें ट्राइहेक्साफेनिडिल या टीएचपी देना पड़े। तो इसलिए हम, आपने देखा पिछले प्रिस्क्रिप्शन में हमने उनको टीएचपी दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन्हें पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स हो। फिर अगर हम देखें फॉलोअप्स, सो फॉलोअप्स में हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉलोअप जो होगा दैट विल बी आफ्टर 2 weeks, जो हम साइड इफेक्ट देखने के लिए करेंगे, क्योंकि पहले दो जो साइड इफेक्ट्स हैं डिस्टोनिया और akathisia, वो यूजुअली पहले 2 हफ्ते में ही हो सकते हैं। उसके अलावा सेकंड, दूसरा फॉलोअप जो है वो हम 4 weeks to assess the effect of medications. Can you mute yourself, please? Yeah. Okay. Once you click here. Unmute. Fine. Go ahead. सो और फिर हम हर महीने उनको फॉलोअप करेंगे देखने के लिए कि उनको मेडिसिन से कितना फ़ायदा हो रहा है और डोजेज का कुछ प्रॉब्लम है या एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो आपके पास पेशेंट आएगा तो आप पूछेंगे उनसे, हैव यू इम्प्रूव्ड, या आप पिछले विजिट से बेहतर हुए हैं? अगर पेशेंट बोलता है हाँ मैं हुआ हूँ, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितना बेहतर हुए हैं, 100 में से कितना बेहतर हुए हैं, या 1 रुपये अगर है तो उसमें से कितना बेहतर हुए हैं। अगर वो बोलते हैं कि मैं ऑलमोस्ट आधा बेहतर हूँ या मैं आधे से ज़्यादा बेहतर हूँ, तो इसका मतलब है दवाइयाँ उनको हेल्प कर रही हैं और उनको सेम डोज पे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, और आप उन्हें फॉलोअप के लिए बुला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि, या पेशेंट बोलते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ और सिर्फ 10% इम्प्रूवमेंट हुआ है या बहुत कम इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसका मतलब है कि उनको दवाई से बहुत कम फायदा हुआ है। तो अगर स्कोप है दवाई की डोज को इंक्रीज करने का, तो आपको डोज इंक्रीज करनी चाहिए और उनको फॉलोअप के लिए बुलाना चाहिए। अगर पेशेंट फॉलोअप पे बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ हूँ, तो एक रेड फ्लैग आपको दिमाग में खड़ा होना चाहिए कि ठीक है, अगर पेशेंट ठीक नहीं हुआ है तो क्या वो दवाइयाँ ठीक से ले रहा है, और अगर दवाइयाँ ठीक से ले रहा है तो जिस तरीके से उनको प्रिस्क्राइब किया गया है उसी तरीके से ले रहे हैं। अगर इफ यू फील दैट इट इज इन द रॉन्ग वे, सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन देम द प्रेस्क्रिप्शन की राइट वे क्या है। अगर वो राइट वे से ले रहे हैं और दवाई का डोज ठीक है, टाइम ठीक है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि उनको ट्रीटमेंट फायदा नहीं कर रहा है और उन्हें एक स्पेशलिस्ट के एवेल्युएशन की जरूरत हो, तो आपको उन्हें आगे रेफर करना चाहिए। तो अब हम अगले और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं कि व्हाट आर द साइको सोशल इंटरवेंशन अवेलेबल। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि काफ़ी अलग जो ब्रांचेस हैं मेडिसिन में, उसमें काफ़ी चीज़ें सिर्फ मेडिसिन से होती हैं, लेकिन साइकेट्री में एक खास चीज़ है कि साइको सोशल इंटरवेंशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि लोगों के जो मॉडल ऑफ इलनेस होता है, या फिर वो क्यों सोचते हैं कि एक इंसान को मानसिक तकलीफ है, वो बेसिकली ये 3 रीजंस हो सकते हैं। उनको लगता है कि रिलीजियस कुछ कारण है कि किसी भूत या प्रेत का निवास है उसके अंदर। आप लोग ने देखा होगा गांव में बहुत बोलते हैं ये सब कि उसके अंदर देवी चली गई है या कोई आत्मा बस गई है। तो कोई रिलीजियस कारण हो सकता है मानसिक रोग का। या फिर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इसकी बॉडी में कुछ खराबी है या ब्रेन में कुछ खराबी है तभी उसको ऐसा हो रहा है, और अगर हम दवाई देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर हो सकता है सोशल मॉडल ऑफ इलनेस, जिसमें होता है कि
जो उनका आसपास का सामाजिक वातावरण है उसमें कुछ चीजें ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो इंसान सफर कर रहा है और उसको मानसिक रोग डेवलप हुआ है। तो बेसिकली पेशेंट्स आएंगे तो ये 3 मॉडल्स के साथ आपके पास आ सकते हैं, बट आपका रोल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको उन्हें समझाना होगा किसी भी मेंटल इलनेस या साइकेट्रिक इलनेस का जो मॉडल होता है या कारण होता है वो तीनों से मिला होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो तीनों मॉडल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से मानसिक रोग आता है। तो उनको ये बोलना कि आपका जो मॉडल है या आप सोचते हैं उनके अंदर भूत है और नहीं आप बिल्कुल गलत हैं, वो सही अप्रोच नहीं होगा। बट उनको बोलना ठीक है, आपका जो विचार है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और आप जो ट्रीटमेंट या मंदिर ले जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके साथ साथ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इनके आसपास का जो साइको सोशल एनवायरनमेंट है उसके इंटरेक्शन की वजह से इनको मानसिक प्रॉब्लम हुआ है। और क्योंकि उसके इंटरेक्शन से हुआ है इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको सुधारने का कोशिश करें या ऑल्टर करने का कोशिश करें तो डेफिनेटली उनको इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं साइको सोशल एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए? तो हमें करना होता है काउंसलिंग। एज अ मेडिकल ऑफिसर आपका रोल होगा कि आप पेशेंट को काउंसिल करें कि ये काउंसलिंग जो होगा ये जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है या ड्रग्स रिलेटेड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेगा। ये ब्रीफ होना चाहिए लेस देन 5 मिनट्स का, और इसमें क्या बोलना है आपको पेशेंट को कि आपको उनको बीमारी के बारे में एजुकेट करना चाहिए कि जैसे आपके पेशेंट को कोई सीरियस मानसिक रोग है और इसका जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि बायोसाइकोसोशल एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से तकलीफ आती है। और उनको बोलना है कि ये रोग जो है हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन कब तक ठीक होगा, पूरी तरह ठीक होगा कि नहीं, और पेशेंट क्या क्या चीज़ें कर पाएगा वो शायद आपको इस समय में नहीं बता पाऊंगा, बट ट्रीटमेंट जैसे जैसे होगा वैसे हमें भी पता चलेगा। और आपको ये बोलना है हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो पूरी तरह कभी ठीक ना हो, लेकिन ये स्टार्टिंग में अगर आप बोलेंगे तो उन लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा बोलना ज़रूरी है कि कब तक ठीक होगा, कितने ठीक होंगे इस समय हम नहीं बता सकते। कुछ समय के बाद जब वो ट्रीटमेंट ठीक से लेंगे, दवाइयाँ ठीक से लेंगे, बाकी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो करेंगे, तो धीरे धीरे डेफिनेटली उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये भी उनको सिखाना ज़रूरी है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर पेशेंट की बीमारी की वजह से उनको कोई तकलीफ हो रही हो या उनके रोजमर्रा के जीवन में इफेक्ट हो रहा हो तो क्या क्या कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको एक एग्जांपल आगे दूंगा। और ये ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि काउंसलिंग जो है वो साइकोलॉजिकल थेरेपी या साइकोथेरेपी से अलग होता है, क्योंकि साइकोथेरेपी एक स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करता है। आपका रोल है उनको एजुकेट करना, उनका एटीट्यूड ठीक करना और उनको प्रैक्टिकल टिप्स देना कि वो कैसे हैंडल कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो जैसे अगर हम बात करें कि जैसे पेशेंट आपके पास गांव से आया है और आप उसको कुछ उसकी रोज़मर्रा के जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप उनको बोल सकते हैं कि एटलीस्ट अगले 3 महीने तक आप उस पेशेंट को बोले कि वो तुम्हारे साथ काम पे आए और आपको सिर्फ देखे, ऑब्जर्व करे कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे अगर आप किसान का पेशेंट का कोई फैमिली मेम्बर किसान का काम करता है तो उसको बस ऑब्जर्व करने के लिए बोले। 3 महीने बाद आप हो सकता है उनको छोटे छोटे काम देना शुरू करें कि वो जो बंडल्स हैं क्रॉप के उसको बांधें या फिर उसको रख के आए स्टोरेज हाउस में, और जितना वो काम करते हैं उसके हिसाब से उनको उसका कुछ रेम्यूनरेशन मिले या फिर उनको कुछ उसका प्राइज मिले, जैसे 10 रुपए 1 घंटे काम करने का। ये उनको कंटिन्यू करना हो अगले 3 महीने तक। उसके बाद आप इंक्रीज कर सकते हैं ड्यूरेशन कि उनको 2 घंटे काम करना है तब उनको पैसा मिलेगा, या हो सकता है कि जो काम की इंटेंसिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं कि सिंचाई करना, आपको पानी डालने में मदद करना। तो ऐसे इंटेंसिटी या ड्यूरेशन आप बढ़ाएं और उसका जो रेम्यूनरेशन है वो भी बढ़े, और ये उनको अगले 3-6 महीने से करना है। तो जो पेशेंट पहले कुछ नहीं कर पाता था आप उसको धीरे धीरे इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं और जो एक्टिविटीज हैं उनकी वो इंक्रीज कराना चाहते हैं। सबसे जरूरी है कि ये चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जिस दिन भी वो करें उनको उस दिन उसका इनाम मिलना चाहिए या फिर उसका रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तभी वो सीखेंगे कि धीरे धीरे उनको कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि मैं काम करूं आगे। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है कि इन पेशेंट्स को यूजुअली डिसेबिलिटी पेंशन या स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, एक यूडीआईडी स्कीम
शुरू करी गई है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी स्कीम, जिसके लिए जो सब पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें पेशेंट या उनके फैमिली मेंबर्स खुद अप्लाई कर सकते हैं और जो असेसमेंट होगा एक मेडिकल ऑफिसर का और साइकेट्रिस्ट का, उसके अनुसार उनको पेंशन मिलेगी। और स्केल जो है वो आइडिया स्केल इस्तेमाल होता है और बेस्ड ऑन उसमें उनका कितना स्कोर या परसेंटेज आता है उसके हिसाब से उनको पेंशन मिलती है। तो ये अलग अलग रंग के कार्ड्स हैं। जो इंक्रीजिंग सिवियरिटी, जो सबसे ज़्यादा सीवियर होगा उसको रेड कलर का कार्ड मिलेगा, और अगर उन लोगों की जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा है तो उनको पेंशन के लिए वो अवेलेबल एमेनेबल हो जाते हैं। और स्टेट वाइज भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कर्नाटका में 75% के ऊपर उनको 1400 रुपीज़ मिलते हैं और 75% से कम हो तो उनको 600 रुपीज़ मिलते हैं। तो हर स्टेट का अलग क्राइटेरिया हो सकता है। अब हमें समझना है कि ठीक है, हम समझ गए सीवियर मेंटल इलनेसेस क्या है, बट इन मेंटल इलनेस के साथ क्या क्या चीज़ें कॉमनली पाई जा सकती हैं जिसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि जो दवाइयाँ हैं उनसे कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स मेटाबॉलिक तरीके के भी हो सकते हैं, मतलब कि उनको वज़न बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस या डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होना, बीपी या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होना, उसी तरीके से डिस्लिपिडीमिया या हाइपर ट्राइग्लाइसरीडेमिया होना, तो ये सब उनको रिस्क ज़्यादा होते हैं होने के और आपको मॉनिटर करने का ज़रूरत है। तो आप क्या मॉनिटर कर सकते हैं? उनका फास्टिंग शुगर, उनका फास्टिंग लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, और जब भी आपके पास विजिट पे आ रहे हैं तो अच्छा होगा अगर आप उनका एक वेट और असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे बीएमआई में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है वेट गेन, तो हो सकता है हमें दवाई का डोज या मेडिकेशन चेंज भी करना पड़ सकता है। उसी तरीके से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना और एक बेसलाइन ईसीजी करना ज़रूरी हो जाता है उन पेशेंट्स के लिए। और ये आप मॉनिटर या तो हर फॉलोअप पे कर सकते हैं या 6 महीने के बाद या 1 ईयर के इंटरवल में भी कर सकते हैं। और इनका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी हो सकता है क्योंकि आगे ट्रीटमेंट चेंजेस में इसका रोल हो सकता है इम्पोर्टेंट। उसके अलावा आप देखेंगे, आपने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं सीवियर मेंटल इलनेसेस के साथ, उनको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि तंबाकू का इस्तेमाल करना, गांजे का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना या फिर और तरीके के जो नशे होते हैं वो करना, वो एक कॉमन कोमॉर्बिडिटी होती है। समझना ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको हम डुअल डायग्नोसिस कहते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा उनको साइकाट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप को अगर लगता है कि ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस हैं, दोनों को ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, तो आपको उन्हें रेफ़र करना ज़रूरी है किसी साइकियाट्रिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास, क्योंकि इन इन इस तकलीफ़ को स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम एपिलेप्सी बोलें या फिट्स बोलें या सीजर्स बोलें या मिर्गी बोलें, ये भी कभी-कभी साइकोसिस वाले पेशेंट्स में पाया जाता है या सीवियर मेंटल इलनेस वाले पेशेंट्स में पाया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं और उसका रिलेशन हो सकता है मेंटल इलनेस से भी हो, तो आपको उनको भी रेफ़र करना ज़रूरी हो जाता है हायर सेंटर में। पार्किंसोनिज़्म जैसे हमने पहले भी बात करा, हाथ का काँपना या फिर चाल धीरी हो जाना या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत धीरे करना, वो मेडिकेशंस का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। या फिर अगर आपको लगता है मेडिसिन का डोज़ कम करने के बाद या फिर टीएचपी ऐड करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कहीं इस पेशेंट को असली में पार्किंसोनिज़्म या पार्किंसंस डिज़ीज़ जिसे हम कहते हैं वो तो नहीं है। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। उसी तरीके से सीवियर डिप्रेशन में, जैसे मैंने पहले भी हाइलाइट करा था, सुसाइड का रिस्क असेस करना ज़रूरी हो जाता है और अगर ऐसा है तो उनको रेफ़र करना हायर सेंटर ज़रूरी हो जाता है या स्पेशलिस्ट के पास। अगर वो बोल रहे हैं कि मैंने रिसेंटली अटेम्प्ट करा है या फिर कुछ दिन पहले मैं ख़्याल आ रहे थे कि मैं नहीं जीना चाहता, तो अगर ऐसी विचार वो व्यक्त कर रहे हैं आपके इंटरव्यू में, तो उनको रेफ़र करना ज़रूरी है क्योंकि रिस्क होता है कि वो लाइफ़ का रिस्क हो सकता है अगर पेशेंट इन ख़्यालों पे एक्ट करे। तो बेसिकली हमने अभी तक जो चीज़ें समझी हैं कि सीवियर मेंटल इलनेस क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या होता है इन चीज़ों का, कोर्स और ट्रीटमेंट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, कब हमें उनको रेफ़र करना चाहिए, क्या साइकोसोशल इंटरवेंशंस होते हैं, वो सब हमने डिस्कस करा है। कुछ चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स आपसे पूछ सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स कब शुरू होते हैं? तो यूजुअली जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स हैं वो
यंगर एज ग्रुप में होते हैं, 16 to 30 ईयर्स ऑफ एज। और इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई पेशेंट बहुत लेट एज पे आता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं इसको कोई ब्रेन में लीजन या कोई और तकलीफ तो नहीं है। इज देयर एनी क्योर फॉर स्किजोफ्रेनिया? एक्चुअली बोला जाए तो कोई भी क्योर, मतलब पूरी तरह क्योर स्किजोफ्रेनिया का अभी तक नहीं है, बट डेफिनेटली दवाइयों से और साइकोसोशल इंटरवेंशन से हम उन्हें काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं और उनको एक ऑलमोस्ट जितना नॉर्मल पॉसिबल लाइफ देने की कोशिश कर सकते हैं। हाउ कॉमन इज स्किजोफ्रेनिया? तो दिस कंडीशन अकर्स अबाउट 1 in 100 पीपल। तो अगर 100 लोग आप पेशेंट्स देखें तो हो सकता है उसमें से एक को एटलीस्ट स्किजोफ्रेनिया की तकलीफ हो, और ये किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के इंसान को हो सकता है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग या गांव में रहने वाले लोगों को ही होता है या सिर्फ शहर में रहने वाले लोगों को ही होता है, किसी को भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की हम बात करें तो क्या इफ अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर, क्या वो जिंदगी भर मेडिसिन पे रहेगा? तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे वो निर्भर करता है, जैसे पेशेंट के सिम्टम की सिवियरिटी क्या है, पेशेंट किस तरीके का कोऑपरेशन है उनका, और क्या उनके घर में कोई मॉनिटर करने वाला है। तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इंडिविजुअल आंसर पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से होते हैं। इज देयर एनीथिंग विच अ पर्सन कैन डू टू नो अबाउट द डिसऑर्डर? तो बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, या फिर डॉक्टर BM सुरेश का यूट्यूब चैनल है जिसमें वो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। निम्हांस की तरफ से भी काफ़ी मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के नॉलेज बढ़ाने के लिए नॉर्मल लोगों में। और लाइफस्टाइल का रोल बाइपोलर डिसऑर्डर पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट ठीक से नहीं सोएगा, आपने देखा होगा जिस रात आप नहीं सोते हैं अगले दिन आपका मूड थोड़ा अपसेट होता है, लो होता है, और आप ध्यान नहीं दे पाते। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज, स्लीप, प्रॉपर डाइट का सबका असर मानसिक रोगों पे पड़ सकता है, इंक्लूडिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है आप लोगों को सीवियर मेंटल इलनेसेस से ओरिएंट करने की, और आई एम थैंकफुल आप लोग की पेशेंट लिसनिंग के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास हमारे लिए, मेरे लिए या डॉक्टर सुरेश के लिए, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आंसर करने की। थैंक यू। Yeah, any questions are there, you can ask, please. Dr. Suresh, first of all, I'm really thankful that Dr. Prateek has given such an excellent presentation. With the presentation was very good and in a very simplified manner. He has explained CMDs. It's like how to identify, and the best part was that he has given the examples from the common examples, so that everybody could correlate. So I just congratulate for this thing to Dr. Prateek and to you that it is an excellent presentation. And one thing I just want to know is a little about section 89. Okay, madam. I just want to know, like, because in section 89, 3 conditions have been explained on the basis of which, like, the medical officer can, give treatment to the patients and then later on send it to psychiatrist. So I just want a little details about it that you can a little explain, so that because we have the medical officers who are working in periphery, when to refer a patient with CMD to a psychiatrist. So that is my question. Yeah. डॉक्टर प्रतीक हैज डन द प्रेजेंटेशन। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कब पेशेंट को रेफर किया जाए। देखिए कि पंजाब में जितना पेशेंट्स आते हैं, सडनली देयर विल बी ए वायलेंट अबनॉर्मल बिहेवियर। वो हो सकता है ड्रग्स की नशे की वजह से भी हो सकता है, नहीं तो ड्रग्स जब बंद करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स के टाइम पे भी आने का चांसेस बहुत रहता है, नहीं तो अक्यूट साइकोसिस हो सकता है और क्रॉनिक साइकोसिस। अक्यूट साइकोसिस मतलब 1 महीने की कम है तो अक्यूट साइकोसिस, 1 महीने से ज्यादा है तो वी कॉल इट एज क्रॉनिक साइकोसिस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक। तो ये साइकोसिस जो है, जब पेशेंट्स को आपके यहाँ लेके आते हैं इज इन ए वायलेंट कंडीशन, तो यूजुअली उसको हाथ पैर बांध के लेके आते हैं, नहीं तो पुलिस उनको अरेस्ट करके, नहीं तो दे विल ब्रिंग हिम इन सच ए सिचुएशन। उस दौरान आपको ये देखना है कि पेशेंट को ओरिएंटेड है या नहीं। इफ ही इज नॉट ओरिएंटेड, मतलब टाइम प्लेस पर्सन के लिए ओरिएंटेशन नहीं है, तो
एक तो ड्रग्स की वजह से हो सकती है, नहीं तो दारू यानी अल्कोहल बंद करने की वजह से डेलीरियम ट्रेमेंस, नहीं तो ड्रग विड्रॉल टाइम पे भी हो सकता है डेलीरियम्स। तो उस समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नो देयर इज अ साइकोटिक एपिसोड एंड आल्सो ड्रग्स and the drugs use withdrawal is there, and you find that it is in a very difficult situation, orientation नहीं है, seizures हो रहा है, don't treat him there, refer him, पहला चीज। दूसरा, if the person has attempted suicide, don't treat him there, refer him again। 2 डायग्नोसिस साथ में है, 2 डायग्नोसिस साथ में है, ड्यूअल डायग्नोसिस बोलते हैं, यानी अल्कोहल एंड साइकोसिस, again don't treat him। But sir, then when are the situation where a general practitioner or a primary care doctor treat करना जरूरी है? स्ट्राइट फॉरवर्ड केस है, सर कभी ये नशा नहीं कर रहा है लेकिन अभी आया है, 1-2 हफ्ते से बहुत गुस्सा हो रहा है, मारपीट कर रहा है, बोलता है कि लोग मुझे मारने आ रहे हैं। दैट इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। आप उनसे पूछेंगे कि आपको कोई मारना चाहता है? हाँ सर, बहुत लोग मुझे मारना चाहता है और मेरी नेबर्स मुझे मारना चाहते हैं, इवन मेरी माँ भी खाने में जहर मिला के दे रही है। इस तरह का जो बात करता है, एंड इफ यू आस्क हिम फॉर ओरिएंटेशन बढ़िया बोलता है कि ये आज तारीख कौन सा है, टाइम क्या हुआ है, सबको आइडेंटिफाई करता है। तो उस दौरान उस तरह पेशेंट्स को आप डायरेक्टली यू कैन ट्रीट बाय गिविंग रेस्पेराडोन या हैलोपेराडोल, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट में है, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के दौरान वो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, वो दे सकते हैं। एक नहीं सर, बहुत वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, डोंट गिव लोराज़ेपाम, गिव हैलोपेराडोल इंजेक्शन। ही इज वेरी वायलेंट, यू डोंट नो द हिस्ट्री, आप फैमिली मेंबर्स या पुलिस को भी पता नहीं है क्या है, ये ड्रग्स ले रहा है नहीं ले रहा है, कब से ये इसको साइकोसिस है पता नहीं चल रहा है। उसको काम करने के लिए calm him down, for that purpose haloperidol 10 mg 10 mg IV दे सकते हैं। So haloperidol doesn't have any effect on the respiratory system। अगर सोच लीजिए इस ड्रग इंटॉक्सिकेशन में है और आप डाइजिपम देना चाहते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। तो हैलोपेराडोल इज द बेस्ट ड्रग फॉर नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू रेफर व्हेन द पेशेंट इज सुसाइडल, दैट मीन्स ही हैज अटेम्प्टेड सुसाइड, उस तरह का चीज है। 2 डायग्नोसिस है, यानी ड्रग्स, अल्कोहल प्लस साइकोसिस है उसी दौरान। थर्ड, you have to be very careful, especially if there are any legal issues are involved, किसी को मारा है या पुलिस केस हो रहा है, then you better to refer। So these are the situation you should remember। और मैडम जो बताया है उसके दौरान सेक्शन 89 बोल रहे हैं, ये सेक्शन 89 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। देखिए, अगर कोई पेशेंट कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में है या सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, आपके अस्पताल आता है या पीजीआई चंडीगढ़ जाता है, नहीं तो इवन इफ ही गोज टू जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में, अगर वो बोलता है मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डॉक्टर बताएंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट बताएंगे नहीं देखिए आप मर जाएंगे, लेकिन नहीं, आई डोंट वांट ट्रीटमेंट, राइट टू रेफ्यूज ट्रीटमेंट है हमारे कानून में, लेकिन साइकेट्री में नहीं हो सकता है वो, क्योंकि वो अगर बीमारी आ जाता है तो दूसरों को ही विल बिकम हार्मफुल, किसी को मार सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सेक्शन 89 पे एडमिट कर सकते हैं उसकी इच्छे के खिलाफ, दैट इज अगेंस्ट हिज कंसेंट, यू कैन एडमिट हिम। सो देयर आर 3 क्राइटेरिया टू एडमिट हिम। 1, डेंजरस टू सेल्फ, अपने आप पे वो सुसाइड करना चाहता है, नहीं तो इज हार्मफुल टू सेल्फ, हार्मफुल टू अदर्स, किसी को मारना चाहता है। थर्ड, अनेबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। सो ये 3 क्राइटेरिया है तो एडमिट कर सकते हैं। सेक्शन 89 पे एक साइकेट्रिस्ट होना जरूरी है और एक मेडिकल ऑफिसर। सो 2 लोगों का अगर साइन हुआ तो आइडेंटिफाइड प्लेस या अप्रूव्ड प्लेस और रजिस्टर्ड प्लेस, जैसे कि अप्रूव्ड मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सेक्शन 60 में एक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन होना है, उस रजिस्टर्ड प्लेस में एडमिट करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं सेक्शन 89 पे। नहीं तो अगर आप पीएचसी में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हैं, एंड दीज प्लेसेस इफ दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, आप खाली 72 आवर्स तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसमें एडमिशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि ये सेक्शन 94 के तहत पे
इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कहीं भी घर में जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कम्युनिटी में जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एनी प्लेस, इवन इन एम्बुलेंस यू कैन गिव ट्रीटमेंट। फॉर दैट सेक्शन 94 इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए दिया है, वो इस्तेमाल करके पीएचसी में 72 आवर्स तक आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नहीं तो you have to refer admit in a place which has been recognized by the government as a mental health establishment. So वो है section 89 admission के लिए 30 दिन के लिए। Another one is section 94 emergency treatment के लिए आपने PHC में भी 72 आवर्स तक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 72 आवर्स के बाद तब तक आपको उसको रेफर करना है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में आप रेफर करना पड़ेगा। यस मैडम, एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन गो अहेड। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, जो मैडम अभी पूछ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, वी डोंट वांट टू टीच यू बट स्टिल दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में एक चीज ये है कि आप लोग अगर जानना चाहते हैं, इट इज फॉर साइकेट्रिस्ट, जहां कैसे एडमिट करेंगे, उसके इच्छे के खिलाफ कैसे रजिस्टर करेंगे, अगर डी एडिक्शन सेंटर आप बनाना है तो कैसे करेंगे, ये सब शेयर। That's what, yeah, that's double click. Yeah, this is the website. इस वेबसाइट मतलब YouTube चैनल है, इसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के ऊपर सब वीडियोस बनाया है। तो आप अगर आप जानना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं, जैसे कि राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी है, रजिस्ट्रेशन और मैजिस्ट्रेट का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या है, वीडियोस है, आप वीडियोस देख सकते हैं। और ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वीडियो भी है, तो आप इसमें बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं एंड यू कैन लर्न अबाउट दैट। बट फॉर अंडर डीएमएचपी एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, यू हैव टू रेफर देम, दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट है, कितने दिन तक दवाई देना है। अगर साइकोसिस पेशेंट है, अक्यूट साइकोसिस है, कम से कम 6 महीने तक। अगर क्रॉनिक साइकोसिस है, 6 महीना हो चुका है, बीमारी चल रही है, तो कम से कम 3 से 5 साल तक रहेगा। तो दवाई बंद मत कीजिए, क्योंकि हर डॉक्टर क्या करता है, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं तो कोई भी और डॉक्टर है, ये साइकेट्री की दवा क्यों ले रहे हो, वही डायबिटीज की दवा ले रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाइपरटेंशन की दवा ले रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन साइकेट्री की दवा क्यों ले रहे हो, बंद कर दो वो सब दवा। इस तरह का जो सलाह देते हैं वो मत कीजिए प्लीज, क्योंकि आपको पता है एक बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी का एक सेलिब्रिटी सुसाइड किया क्योंकि उसने दवा बंद किया था। तो ये नहीं होना चाहिए। 10% लोग, 10% सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, 10% विल कमिट सुसाइड इनवेरिएबली स्टॉपिंग मेडिसिन। सो दवाई प्लीज बंद मत कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो साइकेट्रिस्ट से रेफरल करके आस्क फॉर ओपिनियन। प्लीज डोंट स्टॉप मेडिसिन एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं है, उसका बीमारी के बारे में पता नहीं है। देखिए, अगर डायबिटीज होता है तो खाली उसके लिए प्रॉब्लम है, साइकोसिस है तो पूरा घर को प्रॉब्लम होता है। एक आदमी अगर साइकोसिस है घर में, जाके उनकी माँ को या पिताजी को पूछ लीजिए उनमें क्या दिक्कत होती है। ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू डी एडिक्शन में जैसे ड्रग अब्यूज होता है, उस तरह का जो माहौल होता है घर में, साइकोसिस में भी उसी तरह का माहौल होता है। तो प्लीज डोंट स्टॉप मेडिसिन without getting opinion from the psychiatrist. As a medical officer, start first line of treatment Risperidone. अगर आपको लगता है आपको पता नहीं चल रहा है, साइकेट्रिस्ट से एक रेफरल कर सकते हैं। And once he says you continue the medicine, monitor for side effects, continue medicine for 6 months. Once you can refer to DMHP for your opinion. Any other questions? Please go ahead. Sir, again, I have a little question. I have a question about the role of counselors and the role of clinical psychologists in CMDs. Okay. Common mental disorder या SMDs, madam? Sorry, sir. SMDs. I'm sorry. SMDs. SMDs. ओके, देखिए, जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नहीं तो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनका काम ये रहेगा कि देखिए, मैंने ये बताया कि हर जगह में 0.8% लोग साइकोसिस है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स है। आप ये नहीं बताएंगे कि सर हमारे यहाँ कोई भी साइकोसिस नहीं है। सॉरी, एपिडेमोलॉजी क्लियरली ये बोलता है कि
अगर आपकी पीएचसी या आपकी सीएचसी नहीं तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का जितना, अगर सोच लीजिए 1000 पीपल इज दी कैचमेंट एरिया, 1000 लोग आपका कैचमेंट एरिया में है, तो 10 लोग साइकोटिक पेशेंट्स है। जाके किसी भी विलेज में जाके पूछ लीजिए, कोई ना कोई बोलेगा हाँ सर उनके घर में एक है, इनके घर में एक है। आशा वर्कर को ये ट्रेनिंग देना है कि कौन से सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको दवाई दिया जाए। एंड नाउ कमिंग टू साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर एंड नर्सेस। अगर बहुत गरीब है, दवाई नहीं लेना चाहता है, नर्स एंड द हेल्थ केयर वर्कर कैन गो टू देयर हाउस, गिव इंजेक्शन फ्लूफेनेजिन। जो इंजेक्शन फ्लूफेनेजिन है, एक बार इंजेक्शन दिया तो 15 दिन बदन में रहता है। दैट मीन्स इट स्टेज इन द बॉडी फॉर 15 डेज। 15 रोज एक इंजेक्शन देंगे तो यू विल बी ऑल राइट विद इन 2 डोज, लेकिन दवाई बंद नहीं कर सकते। 15 रोज में हर बार रिपीट करना पड़ेगा। जब ये ठीक हो जाएगा 2 महीने में, 2 महीने में के बाद उसको पीएचसी बुला के इंजेक्शन दे सकते हैं। दैट इज वन। सो दैट इज अबाउट द person who is basically for the nurses and the healthcare workers and ASHA workers. Coming to psychologist या social worker, उन लोगों को क्या करना है, उनको बोलना है कि ये बीमारी है, ये बीमारी ब्रेन में केमिकल्स इम्बैलेंस होने की वजह से, जो मूवीज में बोलता है केमिकल लोचा होता है ब्रेन में, उस तरह का ये है। तो डोपामिन ज्यादा होने की वजह से साइकोसिस आती है। तो वो बंद करने के लिए दवाई देना जरूरी है। अगर आप दवाई नहीं देंगे तो बीमारी वापस आता है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज में क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए हम लोग एंटी डायबिटिक्स दवा देते हैं। इसी तरह एंटीसाइकोटिक्स डोपामिन कम करने के लिए देते हैं। जब भी दवाई बंद करेंगे साइकोसिस वापस आता है, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी सीवियर। इसी कारण आपको दवाई देना बहुत जरूरी है। वो पहला बोलना जरूरी है काउंसलिंग में, कौन दवाई देगा घर में, बिकॉज ये दवाई चलेगा 2 महीना, 2 साल, 3 साल कभी कभी। तो सुपरवाइज्ड मेडिकेशन पेशेंट के हाथ में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को अगर बीमारी ज्यादा होता है तो कंज्यूम करके सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए सुपरवाइज्ड मेडिकेशन देने के लिए बताना है। उनका मॉडल ऑफ इलनेस क्या होता है कि पेशेंट बोलेगा, फैमिली बोलेंगे नहीं सर ये लड़की छोड़ दिया इसीलिए उसको ऐसा बीमारी हुआ है, नहीं तो लॉस हुआ बिजनेस में, बीमारी आया है। हाँ स्ट्रेस है, लेकिन ये बीमारी है, बीमारी की वजह से दवा लेना जरूरी है। नहीं सर हम लोग भगवान की पूजा करेंगे, पूजा हवन करेंगे, कीजिए लेकिन दवाई देना है, ये बोलना जरूरी है। शादी करना है या नहीं करना है उसके बारे में डिस्कस करना है। नहीं सर बच्चे होना है या नहीं होना है उसके बारे में डिस्कस करना है। कौन सा काम करना है या नहीं करना है, इस तरह का डिस्कशन करना है। और उसका फैमिली मेंबर, सोच लीजिए हस्बैंड को बीमारी है साइकोसिस, वाइफ को पता नहीं चलता है ऐसा क्यों कर रहा है ये, तो वाइफ को सपोर्ट देना है, काउंसलिंग करना है उनको भी, नहीं ये बीमारी की वजह से कर रहा है, प्लीज दवाई दीजिए, सुपरवाइज दवाई दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। उस तरह का अगर सपोर्ट देंगे तो फैमिली मेंबर उसको देखभाल करेंगे। क्योंकि इस बीमारी में, स्किज़ोफ्रेनिया में शक करना शुरू करेंगे बीवी के ऊपर कि ये किसी के और के साथ रिश्ता रखी है, तो उसके ऊपर इनफिडिलिटी यानी शी हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल के मारपीट करना शुरू करेंगे। तो पेशेंट मतलब वाइफ विल बिकम वेरी डिस्ट्रेस्ड। तो उस टाइम पे उसको बोलना है ये बीमारी की वजह से कर रहा है तो दवाई देना जरूरी है। तो उस तरह का अगर काउंसलिंग करेंगे तो इट इज नॉट वन सेशन, एक सेशन नहीं होता है, कम से कम 8 से 10 सेशन उनको जानना जरूरी है। क्योंकि अभी साइकोसिस का एक सेशन ले रहे हैं हम लोग, आप सब लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग का जो यू वुड हैव अंडरस्टूड अराउंड 30%। सोच लीजिए पेशेंट कितना सोचेगा या समझेगा, नहीं तो फैमिली मेंबर्स कितना समझेगा। आप 4-5 बार बोलेंगे तभी वो समझेंगे, तभी वो लागू करेंगे। तो वो काउंसलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, खाली पेशेंट और फैमिली को लिए नहीं, माहौल मतलब सोसाइटी को भी बोलना जरूरी है। क्योंकि एक बार किसी को एक साइकोसिस हो जाती है तो वो लोग वो बोलेंगे ये पागल है, तो उसको फैमिली सोसाइटी में किसी भी तरह का काम नहीं देंगे, लड़की नहीं देंगे, नहीं तो लड़का है तो लड़की है तो लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो सब डिस्कस करना है। सोच लीजिए अगर वो शादीशुदा औरत है तो प्रेगनेंसी में ये बीमारी आ सकता है, तो कौन से दवा देना है और ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है, वो सब डिस्कशन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो दवा प्लस काउंसलिंग हैज टू बी रिक्वायर्ड, बिकॉज जैसे ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग अडेरेंस होती है बहुत कम होती है, 1 महीना दवाई लेते हैं बंद कर देते हैं। साइकोसिस में भी यही बात है कि दवाई लेते हैं 2 महीने के बाद ठीक हो जाते हैं,
ठीक हो गया बोल के दवाई छोड़ देंगे, बीमारी वापस आ जाता है। तो फैमिली सोचेगा नहीं सर ये ठीक नहीं होने वाला बीमारी है, क्योंकि साइकोसिस क्योर नहीं होता है, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज, यू कैन ट्रीट इट, यू कैन नॉट क्यूर इट। Similarly, here in psychosis, you have to give medication and control the illness. If you if you give medicine regularly, they do very well. I have at least many doctors who have psychotic episode, bipolar disorder. They do very well on medicine. दवाई बंद किया तो पता चलता है इसको बीमारी है. I have around 1 month back, one PHC doctor had a severe cannabis-induced psychosis. Now he's on medicine, doing very well. He's treating every patient in his PHC. तो आपको जानना जरूरी है कि ये दवाई लेना बहुत जरूरी है, दवाई छोड़ेंगे तो बीमारी वापस आ जाएगा. So that is the response. So that psychosocial intervention is very required because stigma बहुत है. Invariably many patients who have this psychosis, वो क्या करते हैं कि फैमिली मेंबर्स बोलेंगे ये बीमारी है, ये पागल है, तो वो सोचेगा कि क्यों दवाई ले, तो वो भी छोड़ देता है. तो फैमिली को बोलना जरूरी है कि पागल नहीं बोलना है उसको, वो भी इंसान है. इस तरह का जो वार्तालाप होती है घर में, वो भी सही रहना है. नहीं तो हर छोटी चीज पे ये पागल है बोलेंगे तो उसको इतना बुरा लगेगा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है. तो इस तरह का जो स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो कम करने के लिए भी ये क्या है, काउंसलिंग करना जरूरी है. तो दीज आर दी एसेंशियल थिंग्स वेयर ए साइकोसोशल इनपुट्स इज वेरी हाई. जस्ट लाइक फॉर डी एडिक्शन के लिए जिस तरह का जो काउंसलिंग होता है, साइकोसिस के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. So any questions are there, please go ahead. So you know there are videos available on YouTube. You can find regarding Mental Health Care Act. Detailed medical college में जैसे assessment करते हैं, उसका assessment कैसे करना है वो भी available है. लेकिन I don't think you should go through that because आप लोगों को PHC में 5 मिनट में assessment करने की सीखना है और 6th और 7th मिनट में आपको दवाई लिखना सीखना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं. We don't require detailed evaluation, especially in PHC and CHCs. So any questions, please go ahead. कोई भी और कोई प्रश्न पूछना चाहता है, please go ahead. Hello. Yeah, please go ahead, sir. Good evening, sir. I'm Dr. Dillo from Bathinda. Yes, sir. सर मेरे को ये पूछना था कि इन दी लास्ट सेशन में हमने मिक्स्ड डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर? मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दिया है. अच्छा, देखिए आप लोगों को देखिए, पहला चीज है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में 3 किस्म के, एक स्किज़ोफ्रेनिया है, अक्यूट साइकोसिस हो जाती है, एक तो सीवियर डिप्रेशन है, दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर है. ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? विचारों का बीमारी है, थॉट डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग. क्या विचार का बीमारी है? कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, डेल्यूजन्स है. मेरी बीवी ठीक नहीं है, सबके साथ सोती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, सब लोग मुझे देख के हंसते हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं. तो उस तरह का अगर थॉट्स है, थॉट डिसऑर्डर है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया या एक्यूट साइकोसिस बोलते हैं. व्हाट इज मूड डिसऑर्डर? यानी अगर सोच लीजिए डिप्रेशन ये है, घर में अगर मौत होती है, कोई जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पिताजी हो सकते हैं, माताजी, या आपकी लव्ड वंस अगर मर जाते हैं, तो ये 3-4 दिन जो स्मशान वैराग्य आता है, जैसे कि खाने के लिए मन नहीं करता है, जीना क्या है, क्यों जिएंगे, सब लोग मरेंगे एक दिन. तो इस तरह का जो दुख होती है, अगर सोच लीजिए अगर 2 हफ्ते लगातार होती है, उसको डिप्रेशन बोलते हैं. डिप्रेशन, डाउन मूड डिसऑर्डर. बिना कारण खुशी होती है, सोच लीजिए, हैप्पीनेस, वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं एसपी पुलिस सुपरडेंट हूं. इस तरह का डांस करना, गाना गाना, पैसा बर्बाद करना, पैसा खर्च करना अगर होता है, उसको मेनिया बोलते हैं. एक तो डिप्रेशन जो उदासी की बीमारी है, मेनिया जो बहुत खुशी की बीमारी है. अगर डिप्रेशन 2 हफ्ते के लिए होता है, देन वी कॉल इट एज डिप्रेशन. मेनिया 1 हफ्ते के लिए काफी है, उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं.
सर ये बाइपोलर मतलब क्या है? एक साल में 3-4 महीना डिप्रेशन रहेगा, 2 या 3 महीने मेनिया रहेंगे, तभी हम बाइपोलर बोलेंगे। एक तो डिप्रेसिव एपिसोड था, एक मेनिया एपिसोड। कभी कभी ऐसा होता है सवेरे डिप्रेसिव सिम्टम्स है, शाम को मेनिया सिम्टम्स होती है, तभी हम मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट बोलते हैं। यानी एक ही दिन में दोनों सिम्टम्स दिखने को नजर आता है, यानी डिप्रेशन भी है सीवियर, मेनिया भी है साथ में, दोनों एक ही साथ एक ही दिन में आता है, तभी हम मिक्स्ड बोलते हैं, वो समझ लीजिए। लेकिन फिलहाल आपको उतनी हेयर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, इतना समझ लीजिए ये बाइपोलर है, आपको रेस्पिरेडोन शुरू करना है, ये जानना जरूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज ए मूड डिसऑर्डर, भावनाओं का बीमारी है। बहुत कम, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है। डिप्रेशन ऐसा होता है कि 2 हफ्ते के लिए किसी भी काम करने के लिए मन नहीं करता है, हर किसी से गुस्सा हो सकते हैं, नहीं तो सुसाइड थॉट्स आते रहते हैं, नहीं तो खाने के लिए मन नहीं करता है, बच्चे के साथ खेलने के लिए मन नहीं करता है, कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज में मन नहीं करता है, तो वो डिप्रेशन है। ज्यादा खुशी है तो मेनिया बोलते हैं, दोनों साथ में है तो अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। लेकिन आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि रेस्पिरेडोन शुरू करना है उस दौरान। यस सर। थैंक यू सर। सर रिगार्डिंग बाइपोलरी मेरा एक और प्रश्न था कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट अभी हमने एंटीसाइकोटिक उसको डाल दिया बाइपोलर में, साइकोसिस में था वो, अभी 3-4 महीने वहां रहा, फिर उसके बाद वो डिप्रेसिव में जा रहा है, तो क्या हमें एंटीसाइकोटिक तब देना है, कब बंद करना है? देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर में यूजुअली क्या होता है, आपको दवाई देना बहुत जरूरी है। पहला चीज ये दवाई शुरू करना है ये। ओके, पहला चीज ये है कब दवाई देना है। देखिए पहला तो रेस्पिरेडोन दवाई शुरू करना है, और यूजुअली जो भी एंटीसाइकोटिक्स होता है काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ता लगता है। उससे पहले दवाई चेंज नहीं करना है। चेंज करेंगे तो वी हैव हार्डली अराउंड 15 to 20 एंटीसाइकोटिक्स बंद हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो यूजुअली काम करने के लिए एक दवा ब्रेन में जाके ब्रेन में डोपामिन को ब्लॉक करने के लिए, डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए 3 से 4 हफ्ता लगता है। एडिक्वेट डोसेज मिनिमम 4 mg रेस्पिरेडोन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स काम कर रहा है। अगर वो काम करना शुरू किया तो वही दवा चालू रखेंगे। पहला एपिसोड के लिए 6 महीना, 2 एपिसोड है तो 1 साल, 3 से एपिसोड ज्यादा होता है तो 5 साल तक लेना पड़ेगा। तो यू हैव इनवेरेबली, कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है साइकियाट्री में कि 1 हफ्ता दे दिया ठीक हो गया, 1 महीने दे दिया बीमारी ठीक हो गया दवा बंद करो, नहीं। मिनिमम 6 मंथ्स एक क्या बोलते हैं दवाई देना जरूरी होता है। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सर। एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। देखिए, और जो भी बीमारी है साइकोसिस में, पहले हम लोग दवाई देते हैं बीमारी ठीक होने के लिए, बाद में प्रोफिलैक्सिस देते हैं बीमारी नहीं आना है बोल के। सिमिलर टू एपिलेप्सी, सोच लीजिए किसी को 2 बार मिर्गी आ चुका है, एपिलेप्सी आ चुका है, जीटीसीएस आ चुका है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स आ चुका है। पहले हम फिनोबार्बिटोन शुरू करेंगे क्योंकि उसको बंद करने के लिए, सीजर्स को बंद करेंगे। बंद करने के बाद आप बोलेंगे कि 1 साल ये दवाई मतलब फिनोबार्बिटोन 1 साल लेना है। क्यों? आप बताएंगे ये दोबारा नहीं आना है। साइकोसिस में भी यही है, आप पहले दवाई देंगे कि साइकोसिस को क्यों, मतलब ट्रीट करने के लिए। साइकोसिस ठीक हो गया सर 2 महीने के बाद, बंद नहीं करना है, आपको बोलना है कि और 6 महीने लेना है, और 6 महीने के बाद धीरे धीरे बंद करना है। कितना धीरे धीरे कम करना है? 25% हर बार कम करते जाना है। सोच लीजिए इज ऑन 4 mg, रिमूव 1 mg, continue 3 mg for 1 month, then again remove 25%, maybe another 1 mg, continue 2 mg for 1 month, 1 mg for 1 month, half tablet, मतलब half mg, 0.5 mg for 1 month and stop। मतलब 25% कम करते करते 1 महीने में कम करके बंद कर सकते हैं। तो ये जानना आपको जरूरी है कि पहले दवाई देते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, बाद में प्रोफिलैक्सिस देते हैं। प्रोफिलैक्सिस मतलब बीमारी दोबारा नहीं आना है बोल के। सो दैट विल बी एटलीस्ट 6 months। सो डोंट स्टॉप मेडिसिन जस्ट बिकॉज ही हैज इंप्रूव्ड। इवन इन डिप्रेशन आ गया, बहुत सीवियर डिप्रेशन है, आपने दवाई दे दिया फ्लोक्सटिन 20 mg, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया बोल के बंद नहीं करना है, आपको 5 महीने, 5 से 6 महीने फ्लोक्सटिन 20 mg कंटिन्यू करना है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो रिलैप्स होने का चांसेस होता है। सो यू हैव टू गिव, बिकॉज ब्रेन हैज अ किंडलिंग इफेक्ट।
एक बार अगर स्टिमुलस दिया तो अगले बार स्टिमुलस के लिए ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत नहीं है. ए स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस कैन प्रोवोक वन मोर एपिसोड. For that kindling effect to go off, we have to give medicine for longer duration, at least 6 months minimum duration. Any other questions? Please go ahead. और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Would not be better in case of talk about increased dopamine release. Acha, Dr. Ashu has mentioned that would it not be better in case of psychosis to talk about increased dopamine release instead of increased dopamine synthesis? दोनों सही है. आप डोपामिन ज्यादा है भी बोल सकते हैं, नहीं तो सिंथेसिस भी ज्यादा हो सकते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान अगर कोकेन ज्यादा ले रहा है तो इंक्रीज डोपामिन रिलीज होती है. साइकोसिस में भी इंक्रीज डोपामिन रिलीज हो सकती है. तो इनवेरिएबली यू कैन से डोपामिन ज्यादा हो रहा है, then only we call it as psychosis. So both are same, madam, need not worry. Is single dose of injection haloperidol IV stat is sufficient for such patient? देख लीजिए, अगर 50 किलो या मतलब 50 to 60 किलो पर्सन है, केजी है, that person 10 mg of haloperidol is invariably sufficient, but he is in a very excited mania, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो कभी 10 mg देना है इंजेक्शन आईवी, वेट करना है कम से कम 20 मिनट, और उसका क्या बोलते हैं बीपी और रेस्पिरेटरी चेक हैव टू चेक, एंड देन इफ ही डजंट काम डाउन बाय 20 मिनट्स यू कैन रिपीट 10 mg more. So every 20 minutes, 15 to 20 minutes you assess and you can repeat the haloperidol. Up to 40 mg you can repeat without any problem. So haloperidol is very safe, need not worry. IV you can give or IM. If you give IV 20 minutes, if you give IM you have to wait for 1 hour to get the response, because IM में धीरे धीरे जाता है. IV it's very fast, you'll get the response in 10 to 15 minutes. So maximum 20 minutes, 20 minutes के बाद आप repeat कर सकते हैं haloperidol. Coming to section 89 slide, Dr. Charanpreet Singh, little correction, simple medical practitioner or MO general has to refer the severe mental disorder case to psychiatrist available in district hospital. First, if not responding to pharmacology, before directly referring to PGI or AIMS. Okay, so चरणप्रीत सिंह ने कुछ करेक्शंस के लिए बताया है. देख लीजिए कि अगर आपको साइकोसिस, एक्यूट साइकोसिस, अगर आप पहले रेस्पिरिडोन देंगे, अगर वो ठीक हो जाएगा तो कोई जरूरत नहीं है रेफर करने के लिए. नहीं सर, आपने रेस्पिरिडोन 4 mg तक दिया, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जहां साइकाट्रिस्ट नजदीक है उनको भेज सकते हैं. नहीं सर, साइकाट्रिस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं है तो इनवेरिएबली मेडिकल कॉलेज भेज सकते हैं. सर मेडिकल कॉलेज नजदीक है लेकिन उनके पास साइकाट्रिस्ट डिपार्टमेंट है नहीं है, लेकिन अमृतसर, आई हैड बीन टू अमृतसर बठिंडा, दे हैव अ वेरी गुड साइकाट्री डिपार्टमेंट, दे हैव अ वेरी गुड हॉस्पिटल आल्सो साइकाट्री, उधर भेज सकते हैं. If there are no, but they are near to Chandigarh, you can send it to PGI or whichever is nearest, because here there is no hard and fast rule of referral. Over a period of time, maybe 10 साल के बाद ये referral system बन सकती है, लेकिन yes, try at your level, first level of treatment आप try कीजिए. नहीं होता है 1 महीना 2 महीने के बाद, then you can refer, talk to the psychiatrist who is in the district hospital, and then you can have a liaison, you can continue the medicine. So any other questions? Okay, one is somebody has Dilan sir has asked, can antipsychotic and antidepressant can be prescribed side by side? Yes sir. Psychotic depression बोलते हैं. Psychotic depression में मैंने एक पेशेंट देखे हैं 1 महीने, मतलब 6 महीने पहले. एक आदमी जब लॉकडाउन के दौरान he went into severe depression कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और वो डिप्रेशन इतनी बुरी तरह हो गया कि खुदकुशी करने के लिए सोच रहा था. तो देन ही रियलाइज्ड अगर मैं मरूंगा तो मेरा बच्चे का क्या होगा. तो उसने क्या किया, वाइफ के साथ झगड़ा किया, बच्चे को लेके लेक में ही जंप्ड इनटू द लेक, मतलब एक नाला था, नाला में छलांग मार दिया बच्चे को लेके. अनफॉर्चुनेटली द चाइल्ड डाइड, ही सर्वाइव्ड. देयर ही हैड अ साइकोटिक डिप्रेशन, he had severe depression and also had a delusion
कि मुझे कोरोना हो चुका है, मैं मर जाऊंगा तो कौन फैमिली को देखभाल करेगा और मेरा बच्चे को कौन देखभाल करेगा, एक्सटेंडेड सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, वी गिव रेस्पिरिडोन 4 mg plus fluoxetine 20 mg combination we can give, and it is highly recommended in psychotic depression. Not only that, even in mania, sometimes we give mood stabilizer like valproate and also risperidone. Both can be given side by side. So there is no harm in giving. It is actually advocated. But for PHC level, I think monotherapy is better. I don't want to advocate two therapies for you people. Let's understand only the first line of treatment. We will not enter into the second line of treatment where to add an antipsychotic, antidepressant. No, single monotherapy, let's understand. It may be only antidepressant or antipsychotic. Any other questions? Please go ahead. If a patient with psychosis refuses to visit hospital, can any treatment be prescribed without seeing patient? Gurmukh Saab, please don't give any medication without examining a patient. वो मत कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट का कैपेसिटी जानना जरूरी है और उसको देखने के बाद ही प्रिस्क्रिप्शन देना है। एक चीज ये समझ लीजिए, विदाउट एग्जामिनिंग ए पेशेंट डोंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, इट विल बिकम ए मेडिकल नेग्लिजेंस। सर, इनवेरेबली इन मेंटल हॉस्पिटल्स दे डू इट। क्या करते हैं, पेशेंट आ चुका है, क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, दवाई दे चुके हैं, एडमिट हुआ था और 1 साल से दवाई ले रहा है, पेशेंट नहीं आ रहा है, उसका फैमिली मेंबर आ रहा है, देन प्रॉक्सी बोल के दे सकते हैं। फॉर PHC लेवल, डोंट डू इट विदाउट एग्जामिनिंग द पेशेंट, डोंट मेक एनी डायग्नोसिस, डोंट गिव मेडिसिन एट PHC. लेट मी बी वेरी क्लियर, आई विल रिपीट. Don't give medicine without examining a patient at PHC level or even at CHC level. Let the psychiatrist handle such difficult cases. नहीं सर, हमारा पेशेंट है, पुराना पेशेंट है, send a nurse or a healthcare worker, and if is a old case of schizophrenia, they can go with the flufenazine and can give flufenazine. नहीं सर, वो रेस्पिरिडोन ले सकता है तो रेस्पिरिडोन लेके जाके घर में दे सकते हैं। फिलहाल अभी Nimans is doing one project called as CAD, Care at Doorsteps in Ramnagar. Ramnagar is nothing but Sholay movie जहां शूट हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट है रामनगरम। उधर एक केयर एट डोर स्टेप्स एक चल रहा है। आउट ऑफ 140 साइकोटिक पेशेंट्स को हम फोन करते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है साइकोटिक पेशेंट्स, अगर 2 महीने के बाद वो नहीं आते हैं, फोन करेंगे हम लोग, हमारे पास रजिस्टर है, क्यों नहीं आया आप, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। फोन करने के बाद भी नहीं आया तो होम विजिट होता है। होम विजिट इज डन बाय द नर्स एंड द हेल्थ केयर वर्कर, एंड वी नो द मेडिसिन। वो मेडिसिन लेके जाएंगे उसके घर, जाके घर में जाके दवाई उनके फैमिली मेंबर को पूछ के क्यों नहीं आए, क्या तकलीफ था, वो डिस्कस करके दवाई उनके हाथ में दे के 2 महीने के बाद आने के लिए बोलेंगे। ये जो स्टडी हो रहा है ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, 98% ऑफ द फैमिलीज आर वेरी हैप्पी कि सरकार ने इस तरह का जो क्या बोलते हैं होम विजिट जो केयर है वो दे रहे हैं। हमें पता नहीं था सर, हम लोग आएंगे, लेकिन 2% लोग कुछ गुस्सा हो रहे थे, क्यों आ रहे हैं आप लोग। ये चल रहा था प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि छोटा भाई का बीमारी है, बड़ा भाई नहीं चाहता है कि वो ठीक हो जाए, उस तरह का कुछ मसला था। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। लेकिन 98% द फैमिलीज वेर वेरी हैप्पी। Home visit, there we can go and give the medicine directly to the family members, asking what is the problem, why they did not come. Invariably there will be some or the other क्या बोलते हैं family तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, so that is the reason they may not come. So sending the medicine, either oral medicine or injection, will be good. So any other questions we can take? Yes, Madam Ji, any other questions you have? No problem. One last time, if you want to know about Mental Health Care Act and assessment, you can go to the YouTube channel Suresh Badadmat. The YouTube channel is there. I'm updating about various mental health laws and also the law about medical negligence, telemedicine practice, उसके बारे में हमने जानकारी दिया हुआ है और अपडेट हो रहा है।
और एक बट इट इज फॉर पीजी स्टूडेंट्स है दूसरा. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू नो अबाउट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसके बारे में आप जाके वीडियो देख सकते हैं, और कैसे असेसमेंट करना है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन वगैरह जो पीजीज के लिए होता है उन्हें बनाया है, लेकिन पीएचसी के लिए जरूरत नहीं है. फिर भी आप जानना चाहते हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं.